All right. So, good evening, my dear friends. I hope you all are doing great. So, let us begin with the class. In yesterday's class, I gave you some homework. So, if you guys have any problem, then please ask me so that I can solve that question, and then we can move ahead. So, if you have any issue, please ask me on the, for that questions. For those questions, please ask. Sir, no doubt. No doubt. ठीक है, चलो. No doubt. ठीक है, चलो. Sir, done. Done. Good. But remember that you have to do these questions seriously in your notebook, because whenever we will be offline, I will first of all I'll check those things. Okay. Before proceeding ahead, I will check those things. Okay. आप notes बनाइए नहीं बनाइए, that's a different thing. But the questions should be done in a proper manner, right? So I want the answers of each and every question, whether it is the exercise question or whether it is this check your knowledge type question or ask yourself type questions. I want the questions to be done in the proper manner, right? Chalo. Now we had started with the even we had started with natural numbers. We further classified natural numbers as even, odd, then we classified the natural numbers as prime number, composite number. Further we moved one step ahead, then we went to integers, uh, then we went to integers, then we classified the numbers as whole numbers also. Now finally, our journey stopped reached till rational numbers. We have already identified what are these rational numbers. Now what I have to do is, ठीक है, अब रैशनल नंबर पता चल गया कि सर रैशनल नंबर क्या होते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स. ओके. We also try to find out how to determine whether a number is greater, whether a particular rational number 1 is greater than or less than the other rational number or not. We have done this. Okay. Although we will be doing it again, please switch off your video. We will do this again once more. But now, today our first task is the addition of the rational numbers, how to add the rational numbers. Here there are two different cases. Case number one is when the rational numbers have the same denominator. केस नंबर वन ये होता है जब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर होता है. That case is very simple, that case is very easy. For example, if I want to add 1 by 2 and say 3 by 2, no, not 3 by 2, otherwise you will get confused. 1 by 2 and say if I want to add 1 by 2 plus 7, क्या है यार, what is it, 1 by 2 plus say 8 by 2. Okay, if I want to add 1 by 2 plus 8 by 2, these are the two numbers which I want to add. तो अब देखो यहाँ पे the denominator is same, the denominator is 2 here, the denominator is 2 here. जब denominator same होता है तो मुझे कोई चिंता है ही नहीं. Simply it will be 1 plus 8 is 9, और in denominator I will write 2. यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैं 2 प्लस टू इज इक्वल टू 4 नहीं लिखूंगा. यहाँ मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, एंड इन डिनोमिनेटर विल बी 2. जो कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों का, वो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाता है. इफ यू वांट टू राइट दिस एज ए फॉर्मूला, लिख लो. देखो कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को. If I want to add a by b plus c by b, then it will become a plus c divided by b. ठीक है सर. अब इसमें एक चीज और होती है, हमने पढ़ा था कि सर जो रैशनल नंबर होता है वो तो निगेटिव भी होता है. निगेटिव नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स. तो कोई बात नहीं, अगर ये c जो है, इफ दिस c बाई b इज, मान लो मेरा जो c है वो -3 है. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. 7/5 प्लस -9/5, ये दो नंबर्स को मुझे ऐड करना है. ठीक है. 7/5 और -9/5 को ऐड करना है. द प्रोसेस इज सेम. सी द इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, then the numerator will be added in the similar way.
द वे इन विच वी यूज टू ऐड द इंटीजर्स, है ना, जैसे हम इंटीजर्स को ऐड करते थे उसी तरीके से हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, एंड डिनोमिनेटर विल हैव दैट क्वांटिटी जो जो सेम नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब 7 प्लस माइनस 9 करना है, दिस इज जस्ट लाइक एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को, एक नंबर पॉजिटिव अगर और अगर दूसरा नंबर निगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, याद करो इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते थे हम, दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लो और जो बड़ा नंबर है उसका साइन चिपका दो। तो यहाँ पे 7 माइनस 9 माइनस 7 इज 2, और बड़ा वाला नंबर कौन सा है, द ग्रेटर नंबर, the greater number is 9, so I will put the sign 9. of, I will put the sign of 9। 9 का साइन क्या है यहाँ पे, 9 तो निगेटिव नंबर है, तो ये हो जाएगा -2/5। दिस इज हाउ आई ऐड, दिस इज हाउ आई ऐड ए नेगेटिव रैशनल नंबर विद ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, ये केस हुआ, कौन सा केस हुआ सर, जब मेरा डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन लाइफ इज नॉट दैट इजी, हम तो जानते हैं कि सिचुएशन तो हमेशा बहुत टफ होती है, तो हमारे पास ऐसे केसेस नहीं आएंगे जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा, ऐसे केसेस नहीं आएंगे, भूल जाओ। एक आध कभी आ गया गलती से तो आ गया, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे हम तो। सर फिर हमारे पास केस कौन से आएंगे सर, आप तो डरा रहे हो सर। मैं कुछ नहीं डरा रहा हूं, हमारे पास वही केस आएंगे बेटा जहां पे हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो। करना कैसे सर, हाउ हाउ आई एम सपोज टू डू दैट, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। क्या करना है सर, बहुत है, आप ऐसे ही बोलते रहे तो आसान है आसान है, क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। अच्छा ये बात तो सबको समझ में आती है ना कि कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमरेटर हाँ इज, सर, हाँ सर। न्यूमरेटर इज जो फ्रैक्शन में ऊपर लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर इज जो फ्रैक्शन में नीचे लिखा हुआ है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो 5 इज द न्यूमरेटर एंड 6 इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर नहीं याद आ रहा है, भूल गए होगे तो भी कोई बात नहीं है। देखो भाई, अगर भूल गए हो, नहीं पता है, पूछ लो। ठीक है, मैंने पहले भी यही बोला था, मुझसे पूछने में कभी कोई संकोच मत करना। पूछने में संकोच करोगे तो फिर दिक्कत होगी। आई एम जस्ट लाइक योर डॉक्टर, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को सारी चीजें बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर कीप्स ऑन आस्किंग यू द सिम्टम्स, देन ओनली ही गिव्स यू मेडिसिन। अदरवाइज डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि किसको कौन सी मेडिसिन देनी है। उसी तरीके से यू गाइज आर एसोसिएटेड विथ मी, विथ अस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर आपको कोई समस्या हो रही है, कोई चीज अगर ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या पीछे का बैकग्राउंड अगर आपको नहीं पता है, तो आप मुझसे प्लीज पूछ लेना। पूछने में कभी मत शर्माना। अब मुझसे ही नहीं, अपने स्कूल में भी अपने टीचर से पूछना। पूछना, जो इंसान पूछता नहीं है वो इंसान कभी लर्न नहीं करता है, तो पूछते रहो। ठीक है, एनीवेज, सो न्यूमरेटर ये होता है, डिनोमिनेटर ये होता है। अब डिनोमिनेटर जो है वो मेरा 8 और 6 है। अब भाई 8 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो बेटा एलसीएम निकालने के हमने दो तरीके पढ़े थे जब हम छोटे थे। तो सबसे पहले 6 और 8 को बाजू बाजू में कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कॉमन मल्टीपल्स ढूंढते हैं। टू, हाँ 6 और 8 का सर, जो कॉमन मल्टीपल है वो मल्टीप्लाइड बाई 3 है। 2। 2 है, तो यहाँ पे जब 2 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिलेगा, 2 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 4 मिलेगा। इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल है नहीं, तो माई एलसीएम विल बी इक्वल टू सर 4 सर, इंटू 3 इंटू 2। सो माई एलसीएम विल बी इक्वल टू 4 into 3 into 4 multiplied by 3 multiplied by 2, which is nothing but 24। जब आप 9th स्टैंडर्ड में आओगे, जब आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे बच्चा, तो मैं आप लोगों को एक दूसरा मेथड सिखाऊंगा एलसीएम निकालने का, बट फिलहाल इसी मेथड से काम चलाते हैं। तो अब मुझे मिल गया कि सर एलसीएम इज इक्वल टू 24। अब आगे क्या करें सर, आगे कुछ नहीं करना है। अब जब एलसीएम मिल गया तो सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन अब हमने पढ़ा था ना इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, से बात हम लोगों ने पढ़ी थी। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे 3/8 है, ठीक है। अब इस 8 को मुझे 24 बनाना है, इस 8 को मुझे 24 बनाना है, तो इस 8 को 24 बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, सर पहला तरीका यह है कि इस 8 में मैं 16 ऐड कर दूं तो 24 बन जाएगा। लेकिन वो तरीका हम नहीं फॉलो करेंगे।
क्यों नहीं फॉलो करेंगे बेटा? क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें हम सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। जब अगर मान लो मुझे इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को बनाना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले सीखा था ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में अपन ने क्या सीखा था? डिवाइड करना सीखा था हमने, वहां पे ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं किया था। यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं, हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना रहे हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए डिनोमिनेटर हमारी मर्जी का होगा, ठीक है? तो अब हम ऐसा करने जा रहे हैं कि हम इसके डिनोमिनेटर को 24 करने जा रहे हैं। डिनोमिनेटर को 24 करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर वाले, जब मैं नीचे वाले 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ऊपर वाले 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। So this will be 3 into 3 divided by 8 into 3, which is equal to 9 upon 24. ठीक है? So this number is equivalent to 9 upon 24. अब हम इसकी बात करते हैं 5/6 की सर। तो 5/6 की अगर हम बात करें तो इसको भी भाई डिनोमिनेटर 24 बनाने के लिए मुझे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। दिस विल बी 5 into 4 divided by 6 into 4, which is equal to 20 upon 24. तो जो मेरा नंबर हो गया वो 20/24 ये हो गया, और ये हो गया 9/24। दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दो। सो 3/8 plus 5/6 will be equal to 20/24 plus 9/24, that is nothing but 29/24. So my dear friends, my answer will be 29/24. क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? से यस और नो? Yes, sir. पक्का? कॉन्फिडेंट? Yes, sir. श्योर? कॉन्फिडेंट? Yes, sir. यस, बोलिए। Sir, I want to ask that why we have taken 6 multiplied by 4 there. Because I want to make this 6 as 24. I want to make Okay, this sir. 6 as Understood. 24. So in order to, why 24, sir? Because the LCM of 8 and 6 came out to be 24. Okay. So I want to make this 6 as 24. So in order to make this 6 as 24, I want to multiply it by 4. Okay. Nidhi, ask your Okay. doubt. Nidhi, ask your doubt. Yes, sir. Here 29/24 is there, so we can convert this into mixed fraction. If you Mixed want, rational number. if you want, you can convert it into like that. If you don't want, you can leave it also. You can leave it also there only. No problem. Not a big deal. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Anybody else who wants to ask something? कोई और? No sir. ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब एक एग्जांपल आप लोग करके बता दो मेरे को। ये वाला एग्जांपल आप लोग मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताओ। व्हाट विल बी द आंसर? What will be the answer? Calculate it and tell me. Sir, -7/15. -7/15. Are you sure? Yes, sir. Okay. Anybody else? Anybody else who is saying that, sir, the answer will be -7/15? No, sir, wait, sir. -7/15. Wait Sir, कर रहा हूँ यार। -11/15. Actually, Yes, my sir. -11/15. -11/15. -11/15. Okay, so there are basically two answers. और आपने जिन्होंने आंसर दिया था -7/15, should I take your answer as final या फिर I No, sir. change कर दूं? कितना कर दूं? Yes, sir. Sir, because my screen got blurred and sir, it was showing another number. Okay, So, okay, sir, I okay. ठीक है।
चलो अब देख लो भाई कैसे करते हैं। वैसे तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, बट लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। भाई 5 और 3 का जो एलसीएम होता है डेट इज 15। तो अब मैं क्या करूंगा, ये -7/5 है ना। अब मुझे अगर इसे डिनोमिनेटर को 15 करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी -21/15। कैसे आया सर? 3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। सिमिलरली 2/3 जो है इसको मुझे क्या करना होगा, 2 into 5/3 into 5 which will be nothing but 10/15. Now what I am having, I want to add it, so I will be having -21/15 plus 10/15. अब डिनोमिनेटर सेम है तो 15 लिख दो डिनोमिनेटर। कोई ऐसा मत करना कि डिनोमिनेटर सेम है, ये मत बोलना कि सर न्यूमरेटर को ऐड किया तो डिनोमिनेटर को भी ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो डिनोमिनेटर में जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है वो हम लोग लिखते हैं, और -21 प्लस 10 करना है तो 21 को एक नंबर निगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है। तो इंटीजर्स में हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे। तो 21 में से 10 को माइनस किया तो 11 बचा। उसके बाद हमने क्या सीखा था, हम बड़े वाले नंबर का साइन उठा के चिपका देंगे, मतलब बड़े वाले नंबर का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे 21 माइनस 10 किया तो मुझे 11 मिला। और बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर, when I am saying that bigger number, at that case I want to say the bigger number in the magnitude. I'm not talking about the absolute values, because in that sense 10 becomes the bigger number, right? I'm talking about the absolute value. So that will be 21 minus 10 is 11, or since 21 was bigger so 21 ka sign chipka do. So the answer will be -11/15. Dev, you want to ask something? Please ask. Sir, you gave a homework page number 6 and 7. Yeah, I gave homework of page number 6 and 7. That was ask yourself. Okay. That we already discussed. Sir, You I guys, did. huh? Okay. You guys said that there is no problem, right? I think you joined little bit late. If you have any issue, So 5 minutes left. if you have any issue in those questions, do ping me after, do tell me after the class. I will give you guys 5 minutes Okay, to sir. discuss. Okay. चलो नेक्स्ट। सो व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है, तो ये तो हमने एडिशन सीख लिया। अब जरा सर कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज दिस क्लोजर प्रॉपर्टी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्लोजर प्रॉपर्टी। The sum of two rational numbers is always a rational number. This is called as closure property. क्या प्रॉपर्टी हुई? The sum of two rational numbers is always a rational number. By 1/2 plus 3/2 करेंगे। अब सपोज करो, let us try to verify this property. Okay, मैंने बोला एक एग्जाम्पल तो यहाँ पे दिया हुआ है, बट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज आई वांट टू ऐड 1/2 प्लस 3/2। ओके, सो द रिजल्ट आई एम गेटिंग 4/2। इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो आई एम गेटिंग 2। अब यार ये तो यार एक रैशनल नंबर नहीं लग रहा है मेरे को। क्या ये 2 एक रैशनल नंबर है? पहले ये बताइए, क्या 2 एक रैशनल नंबर है? Yes sir, 2 is a rational number. पक्का श्योर? Yes sir, sure. Yes sir. सोच लो, गलत मत बोलना। हो Yes, सकता sir. है यहाँ जो लिखा हो Yes, वो sir, गलत sure. हो। श्योर? सभी लोग श्योर हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। भाई सर 2 कैन आल्सो बी रिटन एज 2/1, और हमने यही तो डेफिनेशन पढ़ी थी। अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 is called as a rational number. यही पढ़ा था ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं पढ़ा था। So 2 can be also written as 2/1. So what I got is on adding two rational numbers, I always get a rational number. The sum of two rational numbers is always a rational number. इस बात को हम बोलते हैं, इस बात को हमने बोला है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस चीज को हम क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो सर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुई? क्लोजर प्रॉपर्टी ये हुई
कि the sum of two rational numbers is always a rational number. Let us move ahead. Next is commutative law. Now try to understand this. वहां पे प्रॉपर्टी थी, यहां पे लॉ है. ठीक है, कोई बात नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ना, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, रहेगा वैसे ही. दो रैशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. दो क्या, 3, 4, 5, जितने भी रैशनल नंबर्स हो, उनके एडिशन के टाइम पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है. कहने का क्या मतलब है सर? देखो एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं. एक 1/2 है और एक 3/4 है. आपके बुक का ही एग्जांपल ले लिया मैंने. 1/2 प्लस 3/4 करेंगे तो मुझे मिलेगा 5/4. ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर सर मैं 3/4 प्लस 1/2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3/4 प्लस 1/2 करूंगा तो भी मुझे 5/4 ही मिलेगा. दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इफ आई एम एडिंग टू रैशनल नंबर्स देन द ऑर्डर ऑफ एडिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. Two rational numbers can be added in any order, or if I'm adding two rational numbers, then my dear friend, the order of addition is not important. This is what is called as the commutative law. आगे बढ़ते हैं. एसोसिएटिव लॉ. अब सर ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है सर? एक्चुअली एसोसिएटिव लॉ इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ. क्या बोला मैंने ये बोला कि सर ये जो एसोसिएटिव लॉ होता है ना, दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? कैन यू प्लीज गिव मी सम एग्जांपल? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू से? यस आई कैन. देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना. सपोज मुझे 1 + 2 + 3 करना है. इंटीजर्स है, बाद में रैशनल नंबर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, या चलो 1/2 + 2/2 + 3/2 करना है. या आप लोग बोलोगे कि सर 2/2 तो 1 होता है, ऐसे नहीं काम चलता है. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. 1/4 + 2/4 + से 3/4. ये तीनों नंबर्स को मुझे ऐड करना है. ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स को मैं कैसे ऐड करूंगा सर? पहले इन दोनों को ऐड करूंगा. ठीक है, देन आफ्टर एडिंग देम व्हाट आई विल डू इज, जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को मैं फिर इस 3/4 के साथ ऐड करूंगा. यही करेंगे ना हम लोग, ऐसे ही करते हैं हम लोग एडिशन. हम एडिशन क्या करते हैं, पहले दो नंबर्स को ऐड किया, उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसके साथ तीसरे नंबर को ऐड कर दिया. द सेम थिंग दे आर सेइंग कि जब हम तीन रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज मैंने 1/4 और 2/4 को ऐड किया तो मुझे मिला 3/4. इस 3/4 में जब मैंने वापस से 3/4 को ऐड किया, मुझे रिजल्ट मिला 6/4. ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका ऐड करने का. दूसरा तरीका क्या हुआ ऐड करने का? सर पहले 2/4 और 3/4 को ऐड कर लो, तो मुझे मिला 5/4. और इस 5/4 में जब मैं 1/4 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 6/4. तो दोनों केसेस में जो रिजल्ट आया वो सेम आया. सर एक और तरीका हो सकता है, ऑब्वियसली एक और तरीका हो सकता है. पहले 1/4 और 3/4 को ऐड करो तो मुझे मिलेगा 4/4. 4/4 में 2/4 ऐड कर दो तो मुझे मिला 6/4. तो बेसिकली इन ऑल द थ्री केसेस आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट. बात समझ में आई आप लोगों को? In all the three cases, I am getting the same result. That is what this property is saying. While adding three rational numbers, they can be grouped in any order. Grouping में rational numbers को add करते time order या grouping important नहीं होता है. बात समझ में आ गई? Say yes or no. नहीं समझ में आई है तो Yes, बताइए. sir. ठीक है, आगे Yes, बढ़े. sir. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. पक्का? चलो फिर. Yes, sir. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है या आइडेंटिटी क्या होती है?
पहले समझो, पहले इस बात को समझो, फिर उसके बाद देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। फिर ऐसा ही एक आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बाद में। तो एडिटिव आइडेंटिटी को समझो। एडिटिव आइडेंटिटी इज दैट नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी इज दैट नंबर जिसको मैं उस नंबर में ऐड करूं तो आई विल गेट द सेम रिजल्ट। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोला मैंने ये बोला कि सपोज करो मेरे पास कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है 1/2। अब मुझे कोई ऐसा रेशनल नंबर चाहिए, मुझे कोई ऐसा रेशनल नंबर चाहिए जिसको मैं अगर 1/2 में ऐड करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट मिलता है वो मुझे 1/2 ही मिलता है। ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? ऐसा सर नंबर एक जीरो। ही, ऐसा नंबर एक ही हो सकता है और उसको हम बोलते हैं जीरो। I told you that day, right? That zero is a very important number. जब हम लोग उस दिन बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि जीरो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। जीरो की वजह से ही एक कंसेप्ट डिफाइन हुआ, दैट कंसेप्ट वाज कॉल्ड एज द होल नंबर्स। सो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जीरो। अगर कोई आपको ये गुस्से में बोलता है कि यू आर जीरो, यू नो नट, यू आर जीरो, अगर किसी ने आपको ये बोला कि यू आर जीरो, यू शुड फील वेरी हैप्पी, should feel very happy because it is zero only that has given, that is responsible for additive identity. Otherwise additive identity का कोई existence ही नहीं था, ये concept ही नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ गई? Say yes or no? यस सर। Yes, sir. चलो, जब ये बात समझ में आ गई, yes Aryan, you want to say something? Please ask. अभी हम हाँ आर्यन पूछिए। सर अभी हम जानते कि जीरो है जीरो, पर है ना कोई और साइंटिस्ट कोई और नंबर को है ना बना सकता था जो जीरो की वैल्यू होल्ड कर सकता था। जब बनाएंगे तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल तो जीरो की डिस्कवरी हुई थी आज से कुछ 2500 साल पहले। उसके बाद से तो आज तक कभी ऐसा कोई नंबर आया नहीं। अगर आएगा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल तक तो अभी ऐसा कोई नंबर आया नहीं है दैट हैज इक्विवेलेंट। भाई वैसे भी यार अगर कोई नंबर आता है जिसकी प्रॉपर्टी वैसी है जैसी जीरो की है तो नंबर जीरो ही तो हो गया। सर नंबर मीन्स मेरा ये कहना था कि है ना अगर है ना जीरो डिस्कवर नहीं हुआ हो तो उससे पहले भी है ना बरीड हो गए वो सारे सीक्रेट जिससे पहले भी कोई जीरो डिस्कवर हुआ होगा और हमें पता ही नहीं है। यार इसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि उसके पहले के सीक्रेट्स क्या थे क्या नहीं थे, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ जीरो के आने के बाद बहुत सारे सीक्रेट्स जरूर हम लोगों ने पता किए। ठीक है, चलो। सो नाउ आई वांट टू, अब रैशनल एडिटिव आइडेंटिटी की बात है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने देख लिया कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी इज दैट नंबर जिसको हम उसी नंबर से ऐड करेंगे तो आई विल गेट द सेम रिजल्ट एंड द एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है सर? एडिटिव इनवर्स ये प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इनवर्स ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी रैशनल नंबर में मैं उस रैशनल नंबर के निगेटिव से ऐड कर दूं तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा जीरो। सो द निगेटिव ऑफ दैट रैशनल नंबर इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a by b। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर 1/2 है, अगर इस 1/2 में मैं -1/2 ऐड करता हूं तो आई एम गेटिंग द रिजल्ट एज जीरो। Therefore, this -1/2 is called as the additive inverse of this -1/2 is called as the additive inverse of 1/2। अब सवाल ये उठता है सर, कि -3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3/4 का एडिटिव इनवर्स होगा minus of -3/4 which is nothing but 3/4
-3/4 का एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ -3/4, यहाँ पे देख लो, अगर माइनस ऑफ -3/4 that is equal to 3/4. Additive inverse of any number a by b is minus a upon b. किसी नंबर a by b का एडिटिव इनवर्स माइनस a by b होता है। अगर वो नंबर निगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ दैट नंबर हो जाएगा। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ दैट पॉजिटिव नंबर रहेगा। सो एडिटिव इनवर्स इज दैट नंबर इज द निगेटिव ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है सर, आगे बढ़े, चलिए। ओके, सो 4/7 एंड, अच्छा अब एक चीज और सर, कि कोई नंबर, हाँ ठीक है, तो अब इसमें एक एग्जांपल हो गया, जैसे 4/7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4/7, और अगर -4/7 है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 4/7 होगा। एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ने पे हमें हमेशा 0 मिलता है। ठीक सर, आगे बढ़े। हाँ बोलिए निधि, बोलिए। Sir, on the previous slide you were doing 4/7 and you were doing 999. So what is the meaning of this 999? ट्रिपल लाइन इज इक्विवेलेंट। ट्रिपल लाइन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट, है ना। इसको इक्विवेलेंट अपन कभी कभी यूज करते हैं। दिस ट्रिपल लाइन मींस इक्विवेलेंट। फिलहाल यहाँ पे अपन इक्वल टू यूज कर लेते हैं, बट दिस ट्रिपल लाइन मींस इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो, हाँ जी बताइए। Sir, can you explain me PQ form? हाँ, व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन? PQ form. PQ form means? PQ form means Sir, that एडिटिव इनवर्स कैसे जोड़ेंगे? एडिटिव इनवर्स हम जोड़ेंगे -2/5 में। जब मैं -5/7 का एडिटिव इनवर्स जोड़ूंगा तो फर्स्ट सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि -5/7 का एडिटिव इनवर्स होता क्या है। डेट इज माइनस ऑफ -5/7 विच इज इक्वल टू 5/7। यह हमने सीखा था कि किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो उस नंबर का निगेटिव होता है। तो -5/7 का जो एडिटिव इनवर्स होगा सर वो 5/7 होगा। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम विल बी 35। अगर मेरा एलसीएम 35 आ गया तो मेरी समस्या ही खत्म हो गई। एलसीएम 35 आ गया, अब क्या करेंगे, 5 into 7 करेंगे, -2 into 7 करेंगे, सो दिस विल बी -14। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 25। तो 25 - 14 कितना होता है, 9। सो द करेक्ट आंसर विल बी 9/35। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी 9/35। कैसे किया सर, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमने ये सीखा था कि इफ आई वांट टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स a by b and c by d, then what I will do is a by b में c by d के एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दो। क्या, फिर से बोल रहा हूं, फिर से समझो, a by b में c by d के एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दो। कहने का क्या मतलब हुआ सर, what do I mean by this? एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दो, बोलने का ये मतलब है कि c by d कुछ भी हो उसके निगेटिव को उठा के a by b में ऐड कर दो। अगर c by d निगेटिव है तो फिर मुझे पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा, अगर c by d पॉजिटिव है तो मुझे निगेटिव ऐड करना पड़ेगा। यही काम हमें करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से एक बार फिर से एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। फिर जो था, ये जो फ्रॉम है, ये फ्रॉम मुझे बहुत परेशान करता है। व्हेन आई एम सेइंग दैट आई वांट टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 100, दैट मींस आई वांट टू डू 100 - 4। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी a फ्रॉम b लिखा हो, जब भी a फ्रॉम b लिखा हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन, आई वांट टू डू b - a।
Dev, wait, I will let me finish, then I'll answer your question. So irrespective of the sign, I want to do b Okay, sir. minus a. ठीक है, अब मुझे b minus a निकालना है, तो basically what I want to do, -2/5 माइनस करना है -5/7. तो हमने क्या सीखा था, -2/5 प्लस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/7. इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5/7. चूंकि ये नंबर -5/7 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/7. सो इट विल बी -2/5 प्लस 5/7. जब आप अपन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम विल बी 35. This will be -14 plus 25. So that will be basically 9 by, sorry, not 9 by, I think I wrote 9 by, that will be basically 11/35. If I wrote, if while explaining I had written -9/35, then that was my mistake. It will be basically 11/35. Okay. Now please ask Dev. Dev, ask your query. Sir, I was asking that Hmm. that in integer it is like that there are two minus is equals to plus. Hmm. So it can be applied in rational Yes, number. it can be applied also. Minus minus will be plus, plus into minus will be minus, minus into minus will be plus. We can apply these things also. Not a big deal. जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो हम इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Okay, sir. Okay, somebody one more person wants to ask something. Please ask. Please ask. Yes, sir. हाँ, Sir, बोलिए बेटा. before you did some sign like plus minus. So what is the meaning of that sign? Basically बेटा, I wanted to write an additive inverse of that. अच्छा, अभी जो मैंने बोला माइनस माइनस प्लस, ये बोल रहे हो क्या? नहीं सर, उसके पहले आपने सम कराया था ना, उसमें आपने करा था. चलो ये वाला सम करवाता हूँ मैं, अभी बताना अगर वो ऐसा कोई साइन मिलेगा, क्योंकि आई सॉरी आई डोंट रिमेम्बर इट कि क्या था. वैसे जहां तक है हमने एडिटिव इनवर्स ही लिखा होगा. चलो देख लो ये वाला सम देखो, एंड इफ यू फाइंड दैट साइन प्लीज टेल मी कि सर ये वाला साइन था, ये साइन मुझे को नहीं समझ में आया था. ठीक है, देखो मुझे क्या करना है, 9/16 फ्रॉम 7/24 करना है. तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज 7/24 दूसरे नंबर में से मैं पहला नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं. दैट इज फर्स्ट थिंग. Subtraction means I add the additive inverse of the number that is to be subtracted. तो इस नंबर का जो additive inverse है that is -9/16. तो basically my question reduces to 7/24 plus -9/16. My question reduces to 7/24 plus -9/16. ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें? अब सवाल उठता है सर कि 24 और 16 का एलसीएम निकालना है. तो 24 और 16 का जो एलसीएम होता है वो होता है 48. यू कैन ट्राई दिस. 24 और 16 का जो एलसीएम होता है दैट इज 48. ठीक है, अब 48 बनाने के लिए 24 को 48 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. सो दिस विल बिकम 7 into 2 will be 14. 16 को 48 बनाने के लिए मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 16 into 3 is 48, minus 9 into 3 is minus 27. So it will be 14 minus 27 upon 48, and on solving I'm getting it as minus 13 upon 48. So finally my answer will be minus 13 upon 48. ठीक है सर. सो मेरा जो आंसर आया वो -13 upon 48 आया. मैंने किया क्या, मैंने एडिटिव इनवर्स नंबर का एडिटिव इनवर्स उस नंबर में जाके ऐड कर दिया. 14 को 27, 14 और -27 इन दोनों नंबरों को घटाना है तो घटा दो, पहले डिफरेंस निकाल दो और जो बड़ा नंबर है उसका साइन चिपका दो. that is what we have done. 27 में से 14 जाएगा तो 13 बचेगा, और जो बड़ा नंबर क्या है वो -27 है, तो माइनस साइन चिपका दो. सो इट विल बी -13 upon 48. This will be the correct answer of this question. Okay, moving ahead. कोई डाउट है किसी को? Any doubt in whatever we did in? हाँ बोल रही है, बताइए. No, sir, no doubt. It's clear. No doubt. ठीक है, चलो.
ओके, नाउ कमिंग टू मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, दो रैशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो वी डिफाइन द मल्टीप्लीकेशन एज a अपॉन b multiplied by c upon d, b will be equivalent to a into c divided by b into d. A by b into c by d will be equal to a into c divided by b into d. Okay, अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं। -15/4 मल्टीप्लाइड बाय -3/8 मुझे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करते वक्त अपन साइन का ध्यान रखते हैं। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये 15 3 बताओ 45 यार, 45 45 और 8 4 32, तो फाइनली जो 32 आंसर आया वो आया 45/32। 15 3 45 एंड 8 4 32, तो फाइनली जो आंसर आया वो आया 45/32। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, देखो आ जाओ। 3/7 इंटू -5/8, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर निगेटिव है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो निगेटिव होगा, पहली चीज। 5 3 15, 7 8 56, फाइनल आंसर आ गया -15/56। अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर दो, नहीं सिंप्लीफाई होता है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द फाइनल आंसर विल बी -15/56। आगे बढ़े, यस चलो ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन की बात। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज द क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट यू मीन बाय दिस क्लोजर प्रॉपर्टी, वही सेम पुरानी वाली। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे हमेशा ही एक रैशनल नंबर ही मिलेगा भाई, कुछ और तो मिलेगा नहीं, हाथी घोड़ा तो मिलेगा नहीं। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा, दैट इज सिंपल। 1/2 एक रैशनल नंबर है, 5/7 एक रैशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5/14 मिला। 5/14 भी एक रैशनल नंबर होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो अपन ने एडिशन में पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ, द सेम लॉ इज हियर। The law says that a by b multiplied by c by d is equal to c by d multiplied by a by b. a by b को अगर मैं c by d से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो भी ऑर्डर आए, जो भी रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट आएगा अगर मैं c by d को a by b से मल्टीप्लाई करूं तो। a by b को c by d से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम होगा अगर मैं c by d को a by b से मल्टीप्लाई करता हूं तो। ठीक है, आगे बढ़े। Associative law, again in the associative law the order of multiplication is not important, ना ही ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ना ही साइन चेंज होगा। जैसे ये तीन नंबर्स हैं, 5/2 -7/4 और 1/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इससे को मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आया उसको इससे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द रिजल्ट विल ऑलवेज बी द सेम। इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो सर अगर मेरे को साइन की बात करनी है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। तो फाइनली एक चीज तो मुझे पता चल गई कि जो साइन होगा वो प्लस होगा। 5 इंटू 7 इज 35, 35 इंटू 1 इज 35 डिवाइडेड बाई 2 into 4 is 8, 8 into 3 is 24. So finally I'm getting 35/24 and with plus ka sign. So finally I'm getting plus 35/24. This is how the multiplication is to be done, and this is called as the associative law. Next, एक और एग्जाम्पल, ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सो द रिजल्ट विल ऑलवेज बी द सेम, the result will be 35/24 that I have already told you. Next, existence of multiplicative identity, जैसा कि additive identity में हुआ था,
वैसा ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में होता है। अब यहाँ क्या होता है सर, यहाँ ये होता है हमें उस नंबर का पता करना है जिस नंबर को अगर मैं a बाई बी या हमारे गिवन रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रिजल्ट सेम मिले। आई हैव टू फाइंड दैट रैशनल नंबर जिसको मैं हमारे गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट द सेम रिजल्ट। तो अगर मैं a बाई बी में 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई एम गेटिंग द आंसर एज a बाई बी ओनली। अगर मैं a बाई बी में को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई एम गेटिंग द आंसर एज a बाई बी। एडिटिव इनवर्स में क्या हुआ था, एडिटिव इनवर्स में उल्टा हुआ था। एडिटिव इनवर्स में गिवन नंबर को अगर मैं 0 ऐड करूं तो फिर मुझे गिवन नंबर मिला था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं गिवन नंबर में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आई एम गेटिंग द गिवन नंबर। एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये डिफरेंस होता है। आइडेंटिटी मीन जैसा मैं हूं वैसा सेम रेप्लिका। अगर मैं अपने सामने एक मिरर इमेज प्लेन मिरर लगा देता हूं तो जैसा मैं हूं वैसा ही सेम दिखेगा। सो दैट मिरर इमेज, दैट प्लेन मिरर विल बी माय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मेरे सामने एक प्लेन मिरर लगा तो एक वैसा ही मेरे जैसा इंसान सामने बैठा हुआ दिख गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब वैसा ही नंबर मुझे मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वैसा ही नंबर मुझे मिलना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोला, क्योंकि उसमें हमें गिवन नंबर में मुझे कुछ ऐड करना था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोला, क्योंकि मुझे गिवन नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब 3/4 की अगर हम बात करें तो 3/4 की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 ही होती है। 3/4 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 ओनली। 1 को 1 into 3/4 is 3/4 ओनली। अच्छा, this concept of multiplicative identity can also be extended to my integers also। इंटीजर से ही आई है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट। 2 into 1 is 2। भाई 2 1 जा 2 होता है ना, बचपन से पढ़ते हैं। 2 into 1 is 2, that is what we are doing here। So this concept of multiplicative identity is applicable there also। Now moving further, the next I am having multiplicative inverse। अभी multiplicative inverse क्या होता है सर, multiplicative inverse वो नंबर होता है जिस नंबर में मैं गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रिजल्ट 1 मिल जाए। आई वांट द रिजल्ट एज 1। तो अगर मेरा 2/3 है तो अगर मैं इस 2/3 को मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, द रिजल्ट विल बी 1। कैसे कैंसिल किया सर, मल्टीप्लाई करके देखो ना, ये आ गया 6/6 विच इज इक्वल टू 1। सो 2/3 का अगर मैं पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, सो योर आंसर विल बी 3/2। सर 3/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं। अब जैसे मान लो a बाई बी की बात, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट a बाई बी तो इसको अपन रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज आल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल। दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अगर यहाँ पे a बाई बी है तो यहाँ पे b बाई ए होना चाहिए। रेसिप्रोकल मतलब ऐसा नंबर जिसको मैं गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रिजल्ट 1 मिले। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड एनी 0 में मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं मुझे रिजल्ट 0 ही मिलने वाला है। तो 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 की कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। अगर कोई निगेटिव नंबर है -1 तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो -1 ही होगा। अगर 2 है तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/2 होगा। लेकिन -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अच्छा, इक्वल टू लिख रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो आप लोग फिर से कंफ्यूज हो गए। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-1 विच इज नथिंग बट -1 ओनली। ठीक है, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होगा। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा। a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b बाई ए होगा और 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। समझ में आ गई बात, बोलो हाँ या ना।
Yes, sir. Good. Yes, sir. Very good. sir. You guys are good. Yes, Next sir. property is distributive law of multiplication over addition. Yes. क्या नाम है? आर्या, बोलिए. Sir, what is there any additive identity for 0? जीरो की कोई एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसमें मैं अगर उसी नंबर को ऐड करूं तो मुझे सेम रिजल्ट मिले. तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर जीरो विल बी जीरो. जीरो में मैं जीरो को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा. Yes, sir. आर्या. सो द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो इज जीरो. चलिए, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. जितना बड़ा लिखा हुआ है उतना ही छोटा है. सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. इंटीजर से बात करते हैं. रैशनल नंबर इज जस्ट एन स्पेशल इंटीजर्स इज जस्ट एन स्पेशल केस ऑफ रैशनल नंबर्स वेयर द डिनोमिनेटर इज 1. तो इंटीजर्स के सारे कंसेप्ट रैशनल नंबर्स में भी वैलिड होंगे. यहां बात करते हैं इंटीजर्स का एक मल्टीप्लीकेशन देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे को 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2 करना था. मुझे कोई मल्टीप्लीकेशन मिला 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2 करना था. अब यहां तो चलो आसान सा दिख रहा है. एक काम करो, ये 15 जैसा दिख रहा है तो इसको 15 ले लेते हैं. 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 + 2 करना था. ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 2 which is nothing but 45 plus 6 which is equal to 51. ठीक है, this is what we had learnt in integers. इंटीजर के केस में हम ये पढ़ के आए हैं. The same concept can be applied to rational numbers. प्रूफ कर दो. 3/1 कर दो ना सर, 15/1 कर दो, 2/1 कर दो. तो I can write it like this. तो my dear friends, अगर हमारा कोई कंसेप्ट एक रैशनल नंबर के लिए वैलिड है भाई, एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए वैलिड है, सो इट विल बी वैलिड फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स. कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास 3 रैशनल नंबर्स दिए हैं और अगर मुझे उन्हें मल्टीप्लाई करना है, जिसमें कि अगर मेरे 3 रैशनल नंबर्स इस फॉर्म में दिए हैं, तो आई कैन राइट द रैशनल नंबर्स एज a/b मल्टीप्लाइड बाय c/d plus a by b multiplied by e by f. This I can do, and there is no issue in, there is no harm in this. Okay, so a by b multiplied by c by d plus a by b multiplied by e by f. This is how I have to write the rational number. I multiply the rational numbers using the distributive law of multiplication. Moving ahead, examples. So अगर example की बात करें तो अगेन आई हैव द सेम थिंग, -3/4 इंटू 2/3 प्लस दिस. तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले -3/4 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे. आई मीन आई विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. मैं -3/4 को -2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं ऐड करूंगा बीच में, फिर -3/4 को 5/6 से मल्टीप्लाई करूंगा. देन आई विल सी दैट द रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी 1/8. दूसरा प्रोसेस क्या, तीनों नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तीनों नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन आल्सो द रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी 1/8. सो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. ठीक है सर, चलो नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इज नथिंग, भाई किसी भी इंटीजर में जीरो से गुना करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, जीरो मिलेगा ना. ये बात तो हम लोग पढ़कर आ चुके हैं. इफ आई मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विद जीरो द रिजल्ट विल बी जीरो. सिमिलरली if I multiply any rational number with zero, the result will be zero. This is what is going to happen here. A by b multiplied by zero will be equal to zero. किसी भी रैशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे रिजल्ट जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा. आगे बढ़े, बस खत्म. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टॉप हियर. ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे.